Hello everybody, welcome to Amul Live, and I'm Rupa Balachandar, and today I'm going to share with you how to make a very favorite dish in my household, and it's called vegetable au gratin. So let me tell you something about au gratin. Au gratin is actually a French dish, and you can find it very often or almost regularly at any French restaurant, all over the world. And what it is basically, it is you could put any different type of vegetables, or you could make it with potatoes. And so this dish is basically, what it uses is a bechamel sauce, which is a white sauce, a white cheese sauce. We are going to make the cheese sauce version, and it starts of course with a bechamel sauce and a roux that we're going to make with it. And we're going to make a vegetarian version, which will have a lot of vegetables in it. You are limited to only what you have in your house. I have chosen to use a couple of vegetables that I have in my house today, but you could use any vegetable except maybe things like bhindi, okra or lady fingers, because it has a little chip art in it, and it won't give a good texture. The other thing is you could use cauliflower, you could use sweet potatoes, you can use any variety of dishes. And this is a little rich in the sense that we use cheese, and we are going to use cream, and we're going to use butter. So this is not a main dish, but a side dish to eat with, like a salad and maybe garlic bread or whatever you have at home. What we will start with, so let's switch over and show you what the ingredients are, and then we'll get cooking. If you have any questions, I will try to answer them as and when I can. And if I don't answer your question on the live right now, I will definitely come back to it and answer it a little later. All right, so give me a second while I figure this out. All right, so all right, so here are the ingredients to begin with. All right, so I have cubed carrots, cubed potatoes, broccoli, sweet corn, French beans, onions, green peas, and mushroom. I also have a little bit of garlic that is minced. In the herbs, I have thyme. Now this is not necessary, I had it at home, and so it. And here is flour, which is just maida. Okay, so these were the wet ingredients. Let me go to what are the other ingredients. So here I have Amul, Gouda, and Gouda cheese. So it's basically, Gouda cheese is from Holland. It's a Holland type of cheese. It's a semi-hard cheese, and it has this lovely flavor and aroma, which is quite unique, and it tastes very well melted. If you don't have that, you could use Amul pizza cheese. Here is a blend of mozzarella and cheddar cheese. This works as well. You don't have that, then just use the regular chiplets, the Amul chiplets that you get. You get frozen mozzarella. You can use whatever cheese that you have available for you. Next, I will be using Amul milk. There's Amul fresh cream. Here's butter. This is white pepper, not black pepper, white pepper. And this is seasoning cube, red chili flakes, breadcrumbs. Now, if you don't have any of these herbs, you can always try using the Italian herbs. If you don't have white pepper, you could always use black pepper. All right, very essential, you need to have milk, preferably whole milk. Now, like I mentioned, this dish is not exactly diet friendly, but you don't eat it as a main dish. You eat it along with something else. So moderation is key. Second is, I wanted to show you in what dish you can bake it. Now, if you don't have an oven, that's fine. I will show you at which point you can stop and you can serve as is. But if you have an oven, or microwave oven, or convection oven, or OTG, try to use a wide, shallow dish like this. So what it is it's got more surface area, if you notice, versus this, which is round and deep. So the main thing about this dish is a gratin. And what is a gratin? A gratin is a layer of cheese on top that becomes nice and crisp.
All right, so everybody wants to eat a little bit of that crispy top. That is what makes everything special. अच्छा, मैं हिंदी में ट्राई करूँगी. मेरी हिंदी इतनी कुछ खास नहीं है, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ. आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ बताएं. तो मैंने अभी जो बताया था, जो बर्तन आप अवन में या माइक्रोवेव में डालेंगे, तो आप ऐसा बर्तन चुनिए जो बड़ा है, एकदम वाइड है. ये देखें तो आप देखेंगे तो ये डीप है. इस तरह का बर्तन ना इस्तेमाल करें. ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ ओवन फ्रेंडली और माइक्रोवेव फ्रेंडली डिश ओनली. तो ये आप देखें, ये कांच का है. ये जो है इसको पायरेक्स बोलते हैं. ये स्पेसिफिकली बना हुआ है ओवन और माइक्रोवेव में रखने के लिए. तो आप ज़रा ध्यान दें. अगर आपके पास कांच की बर्तन ना हो तो आप एल्यूमिनियम ट्रे या जो भी है, अगर आपके पास इस तरह का अगर कुछ नहीं है तो इस तरह का जो है, हम लोग जो बर्तन डालते हैं प्रेशर कुकर, इसमें भी आप बना सकते हैं. ठीक है, तो ये आप देखें. वापस अभी जो है डिश, ये तो आप समझ में आ रहा है आपको. मैं हिंदी में ये हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है. ये है दूध. चीज़, अभी आपके पास आपके घर में जो जिस तरह का चीज़ हो आप वही इस्तेमाल करें. जैसे कि ये चिपलेट्स तो हर जगह में मिलते हैं. शायद आपको अमूल पिज़्ज़ा चीज़ ना मिले आपके बगल वाले दुकान में, तो आप जस्ट रेगुलर अमूल चीज़ यूज़ करें. ये 2-3 किस्म के हैं. दूसरा है मक्खन. आपको मक्खन भी चाहिए होगा. ये है क्रीम, जो मलाई है. दूध, ये दूध मैंने कप में निकाल के रखा है. ये ब्रेड क्रम्स है. ये लाल मिर्च, सफ़ेद काली मिर्च, सीजनिंग पाउडर, और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल करें. तो चलिए गैस ऑन करते हैं. अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. अगर आपके पास ऐसा सॉस पैन हो तो ये बढ़िया होगा. आप देखेंगे तो ये हैवी बॉटम पैन है. हैवी बॉटम पैन जो इसकी बेस होती है कुकर जैसी होती है, थोड़ा मोटा होता है. अगर आप देखें आपके पास सॉस पैन ना हो तो आप कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि जो उसका बॉटम है थोड़ा मोटा है, पतला ना होना चाहिए, क्योंकि चांस है कि वो जल जाए जो हम बनाते हैं. तो हम पहले अभी क्या करने वाले हैं, हम इसमें बटर थोड़ा गर्म होने दे रहे हैं. इसमें बटर और मैदा डालेंगे. करुण, can you just hold this? Just show the pan only, okay? Show this. तो आप अगर देखेंगे ये 100 ग्राम मक्खन का पैकेट है. अभी 100 ग्राम में तकरीबन 7 टेबल स्पून बटर होता है. हमें इसमें दो टेबल स्पून चाहिए. तो आप ऐसा कीजिए कि आप ये तिहाई में करेंगे तो हर तिहाई 2 टेबल स्पून तकरीबन होगा. तो मैं ये 1 तिहाई है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर है. अब जब आपने जितना मक्खन लेंगे उतना ही आपको मैदा लेना चाहिए. तो जैसे कि मैंने कहा, अभी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है. इसको हल्का सा हम मेल्ट होने देंगे. और फिर इसमें जो है ये है मैदा, जस्ट रेगुलर मैदा. ये भी 2 टेबल स्पून है. ये आपको ये पूरे रेसिपी में यही ध्यान देना चाहिए कि जो जितना बटर डालते हैं उतना ही मैदा डालना चाहिए. और ओके, सो आप ध्यान दें, 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डालें उतना ही मैदा डालें. मक्खन ज़्यादा हो सकता है मगर मैदा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अभी इसका जो हम बनाने वाले हैं इसको बोलते हैं रू. रू क्या होता है? इट इज़ अ फ्रेंच टर्म. बेसिकली इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ, or it means a paste. So a paste is made with the butter and maida, and what we need is we need a whisk या एग बीटर जो बोलते हैं आप, ये इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ये थोड़ा गर्म हो रहा है. Yes, I'm making a vegetable au gratin. Okay. This is
गार्लिक मैंने मिंस किया है। आप अगर रेसिपी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कितना अमाउंट है। और रेसिपी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज जाइए, मेरा नाम रूपा बालचंदर है, और आप उसमें देख सकते हैं कि रेसिपी दिया हुआ है। ऑलराइट, ओके। तो अभी आप देख लें, बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें अभी हम डालेंगे लहसुन, तकरीबन 1 चम्मच, और इसमें 2 बड़े चम्मच प्याज। अब ये जो प्याज है हमने एकदम बारीक काटा हुआ है। आप जरा ध्यान दें कि ये अच्छे से, अभी इसको वापस हम गैस पे डालेंगे। आप ये सब लो में करना, हाई में करेंगे तो शायद ये रूह जल जाएगा, और अगर जलेगा तो इसका एकदम एक बिटर फ्लेवर आएगा, तो वो होना नहीं चाहिए। तो आप उसका ध्यान दीजिए। जब आप ये रूह बना रहे हैं, आप 2 मिनट इधर ही खड़े रहें इसके साथ, क्योंकि जब ये बन रहा है आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। फ़ोन ऑन आंसर कीजिए, दरवाजे पे घंटी कोई बजाए तो ना जाइए, ये जल जाएगा बहुत आसानी से। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू पे अटेंशन व्हाइल इट इज़ बीइंग मेड। सो हियर इट इज़। नाउ जो हमने डाला है प्याज और लहसुन, इसको हम भूनते नहीं हैं इंडियन स्टाइल में। ये सिर्फ हल्का सा उसका ट्रांसलूसेंट हो जाता है, तब तक हम डालेंगे। और अभी इसमें मैदा, अभी मैदा डाल के इसको हल्का सा भूनेंगे। एक मिनट लगेगा शायद। आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा, जब हमको कैसे पता चलेगा कि ये कुक हो गया है, जो हमने मैदा डाला हुआ है, तो उस एक नटी अरोमा, जैसे कि जब दाल अगर हम भूनते हैं तो उसका जो अरोमा और फ्रेग्रेंस आता है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो हम, मगर इसको ब्राउन ना होने देना, इसको हल्का सा गोल्डन ही होना चाहिए। अगर बहुत ब्राउन करेंगे और ये डिश का कलर भी चेंज होगा। कलर चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर जल जाए तो ये पूरा आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये कड़वा हो जाएगा। तो इसको हल्का सा हम वापस मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है। Is it necessary to be left-handed to be a good cook? No. देखिए, जो भगवान ने हमें दिया है लेफ्ट की राइट, आप एक आंख, आपका लेफ्ट आंख बेटर है या राइट आंख बेटर है, या आपका नोज में लेफ्ट साइड बेटर है कि राइट साइड? ये किस तरह का सवाल है मुझे पता नहीं, मगर आप सोचिए, आपको आपका लेफ्ट लेग ज़्यादा पसंद है कि राइट लेग, तो उस हिसाब से। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। करो नहीं हो, स्टे बैक, द फोन विल गेट हॉट। If the phone gets hot, you just turn off. That's okay. You just hold it on top that they can see it. Yeah, come here. That's enough. Don't have to show too much, because what will happen is it will heat up and then it will stop. अच्छा, अभी आप देख रहे हैं ये हो गया। अभी मैंने 1 कप दूध लिया है, और इसका 1/3 मैं डालूंगी, और ये 1/3 डालने से इमीडिएटली इसको आप विस्क करते जाएं, तो कि इसमें लम्प्स ना होए। अभी आप इसको विस्क करते जाएं, इसमें लम्प्स ना होना चाहिए। There should be no lumps in this. So just keep mixing this. This is better. Move back a little bit. अब इसको आप देख रहे हैं थोड़ा थिक होते जा रहा है।
आप रेसिपी देखेंगे तो दो चम्मच मक्खन, 2 चम्मच मैदा और 1 कप दूध, ये हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है, टोन वाला नहीं, जस्ट द रेगुलर दूध, और इसको मिक्स करते जाएं। अभी आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से थिक हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट अभी डन है। तो दूसरी बात मुझे आपको एक कहनी थी कि हम लोग इस डिश में चीज़ डालने वाले हैं, हमने नमक वाला बटर डाला है, तो नमक इसमें काफ़ी होगा, तो आप थोड़ा सावधानी से आप नमक डालें। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत नमकीन हो जाएगा और आप खा नहीं पाएंगे, तो उसका एक आप ध्यान रखना। तो ये ऑलमोस्ट थिक हो गया है। Yeah, all Amul products are available at any shop in any neighborhood. इसमें कुछ स्पेशल नहीं जा रहा है हम लोग, आप देखेंगे तो ये 1 मिनट, ये अभी इसे मैं थोड़ा आपको वापस चीज़ दिखाती हूँ। आप अपने हिसाब से चीज़ डालें। ये अमूल गूड़ा चीज़ है, ये पिज़्ज़ा चीज़ है, और ये रेगुलर चिपलेट है जो हर दुकान में मिलता है। और मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा पहले ही ये कीस के रख दिया है, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ। करुण कम हियर, कैन यू मूव टू द लेफ्ट अ लिटिल बिट, मूव, आई नीड टू कम बैक हियर, जस्ट शो हियर। तो ये अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, और हम लोग को कैसे पता है हो चुका है, अगर आप इसमें स्पून घुमाएंगे तो आप स्पून का पीछे का भाग देखेंगे। अगर आप एक लाइन लगा सकते हैं और ये अब इस तरह का है, तो ये रेडी हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो हो गया, इसमें मैं थोड़ा क्रीम, अगर ये क्रीम डालना ज़रूरी नहीं है, आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1/4 कप मलाई डालूंगी। मलाई डालने से ये और क्रीमी हो जाता है। अच्छा, तो अभी सब्ज़ी दिखाती हूँ। ये है तकरीबन 1/2 कप ऑफ पोटैटोज़। अब ये जो पोटैटो है, मैंने पहले ही थोड़ा बॉईल करके, पार बॉईल करके रखा है। ये डिश अवन में ज़्यादा नहीं बनता है, सिर्फ अवन में रखते हैं कि वो थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है ऊपर का चीज़। तो ये है तकरीबन 1/2 कप पोटैटोज़। ये हम लोग रेगुलर आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर, आपको अगर शकरकंद पसंद है तो वो डाल सकते हैं, अरबी पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर आधा कप कैरेट, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, ये सब उबला हुआ है। और ये है फ्रेंच बीन्स, ये भी 1/4 कप डालते हैं। ये फ्रोज़न मटर है, आपके पास अगर फ्रेश मटर मिल रहा है तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। ये उबले हुए, ये जो फ्रोज़न मटर है उसको भी हल्का मैंने उबाल के रखा है। और इसमें ब्रोकली है, ये ब्रोकली है, ब्रोकली को छोटे छोटे पीस कट करके मैंने रखा है। अब जब आप ब्रोकली कट करते हैं तो इसका जो डंठल है ये इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करें जो हरा रंग है। यस, ऑल द वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड, पार बॉइल्ड, माने मैंने क्या किया है, थोड़ा गर्म पानी को गर्म किया और उसमें एक एक सब्ज़ी को अलग अलग 2-2 मिनट उसे कुक किया है। एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, करुण कमर, अगर आप सब्ज़ी देखेंगे सब एक साइज़ का है, माने कैरेट बड़ा या छोटा नहीं है, आलू सब एक ही साइज़ का आप ट्राई करें, कट करें। जो आप देखेंगे फ्रेंच बीन्स, मटर, और यहाँ पे थोड़ा मशरूम है, सब मैंने उबाल के कट करके रखा है पहले से ही। तो इसको भी 1/4 कप। अगर आपको नहीं पसंद, इसमें से 1 या 2 सब्ज़ी नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आपके घर में जो आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।
Okay. Any questions, Karun? Nothing. Okay. Okay, come this side. Karun, the mic is around this side, no? So you have to come from behind me. Okay. So अभी ये जो है मैं इसमें थाइम डाल रही हूँ. ये एक हर्ब है, फ्रेंच और इटालियन और अंग्रेज़ी खाना में काफ़ी इस्तेमाल होता है. आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ये डाल सकते हैं. इटालियन सीजनिंग है. जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो पिज़्ज़ा के साथ 2 सैशे आते हैं. एक पैकेट में तो ये जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च के फ्लेक्स आते हैं, दूसरे में एक सीजनिंग आता है. आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास ये भी नहीं है कोई बात नहीं, आप धनिया पत्ता डालें, उसमें भी अच्छा फ्लेवर आता है. या कुछ ना डालें, नो प्रॉब्लम. जो इसमें हम लोग अलग अलग फ्लेवर्स डाल रहे हैं, जैसे कि मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, उसमें ही सब काफ़ी उसका फ्लेवर होता है. ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल करें. अभी ये आप देखें इसका कंसिस्टेंसी क्या है. बहुत मोटा, बहुत थिक नहीं है, क्योंकि जब ये ओवन में बैठेगा जो आलू है और कैरेट है वो स्टार्ची हैं, तो उसमें से थोड़ा ये इसको अब्जॉर्ब करेगा सॉस को. और ऊपर से हम चीज़ भी डालेंगे. अभी मैंने चीज़ पहले से ही कीस करके रखा है. ये तकरीबन हमें अबाउट हाफ कप जितना चाहिए होगा. यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही बना के रखा है. तो आप आधा कप या 3/4 कप आपके हिसाब से आप करें. अगर आपको कम कैलोरी करना है या आप इतना चीज़ नहीं डालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप कम डालें. Yes, you could put mint and rosemary. Any of the flavors are nice. Any fresh herbs taste good. तो जो भी है आपके पास आप उस हिसाब से डालें. I have thyme because it is available right now in my grocery store. जहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी खरीदती हूँ वहाँ पे मुझे मिलता है. तो मैंने इस्तेमाल किया है. कब बटर निकाल. ये आप बोल रहे हैं बॉइल्ड कॉर्न के टाइम आप सॉल्ट ने यूज़ नहीं, मैंने किसी में सॉल्ट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है. क्योंकि आप देखें ये चीज़ में है और फिर जो हम लोग मक्खन डालते हैं उसमें भी है, चीज़ में भी होता है काफ़ी सारा नमक. तो आप अब अगर देखेंगे अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है. ठीक है. और अभी जो है मैं डालूँगी इसमें ये वाइट पेपर पाउडर है. मुझे वाइट पेपर पाउडर पसंद है क्योंकि ये एक तो ये जो डिश है थोड़ा वाइट रहना चाहिए, गोरा वाइट. तो उस हिसाब से मैं वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ. उसका टेस्ट एकदम अलग है काली मिर्च से. मगर अगर नहीं है तो आप फ्रेश काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये है अभी नमक मैं डालूंगी. आप देखिए कितना डाल रही हूँ, हार्डली एनीथिंग. इसमें 1/4 टीस्पून. तो इसको हम टेस्ट करेंगे. और अभी इसमें ये जो है लाल मिर्च है. अभी अगर आपके घर में मिर्च तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें. अगर उतना मिर्च नहीं खाते हैं तो आप ना डालें. आपको अगर हरी मिर्च पसंद है आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं. ये सिर्फ एक चीज़ है इसमें, सब्ज़ी जैसे भिंडी वगैरह ना इस्तेमाल करें. भिंडी थोड़ा स्टिकी चिपा होता है तो उसको डालने में ये ठीक से डिश ठीक नहीं होगा. जब मेरे बच्चे छोटे थे वो तुरई और घिया नहीं खाते थे, तो मैं क्या करती थी, तुरई या तो घिया अच्छे से कीस के डाल देती थी. उनको पता भी नहीं चलता था कि भाई इस डिश में घिया गया है. और मुझे थोड़ा बेटर लगता था कि चीज़ तो गया मगर थोड़ा घिया या लौकी भी गया है. तो ये है डिश. अभी इसको क्या करना है, आपको इसको
अभी इसको ठीक से आप ऐसे डाल दें। और ये दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें, ये है, हाँ, नॉनवेज भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए आपको सी फूड पसंद है, जैसे कि प्रॉन्स या फिश, जो भी आपके, या क्रैब, जो भी आपके पास आपको पसंद है। और मीट में आप डेफिनेटली बॉइल्ड चिकन डाल सकते हैं। आप चिकन को बॉईल कीजिए और उसको फ्लेक करके छोटे छोटे पीसेस डाल के वो भी डाल सकते हैं। ये अगर आप सॉसेज खाते हैं तो आप सॉसेज भी डाल सकते हैं, चिकन सॉसेज, जो भी सॉसेज है उसको थोड़ा हल्का सा तवे पे कुक करके आप डालें, और रॉ ना डालें, क्योंकि इसमें ये ओवन में ज़्यादा देर कुक नहीं होगा। तो आपको पहले ही, अगर आप मीट जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले से ही कुक करके डालना पड़ेगा। जब मैं सब्जी डाल रही थी तब आप डाल सकते हैं। अभी ये है ब्रेड क्रम्स, आप स्टोर में खरीद सकते हैं। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो 2 फ्रेश ब्रेड के स्लाइस हैं, जो रेगुलर वाइट ब्रेड हमको मिलता है ब्रेड, तो उस ब्रेड को आप क्या करें, 2 स्लाइस लें और ब्लेंडर में 2-3 घुमाएं। जैसे कि ये जो ब्रेड है इसमें से 2 स्लाइस निकालें और उसको ब्लेंड करें मिक्सर में, और ऐसा पाउडर बन जाएगा। तो आप ऐसे पाउडर को पहले, अभी हम इस पे ब्रेड क्रम्स क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स चीज़ के साथ मेल्ट होके एकदम क्रिस्प हो जाता है। हम लोग को सब टिक्की, भजिया, पूरी वगैरह जब क्रिस्प है हमको ज़्यादा पसंद होता है। तो इसी कारण से इसके ऊपर आप ये ब्रेड क्रम्स डालें। ये टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दें। इसमें अभी मैंने डाला है ब्रेड क्रम्स, और इसके ऊपर चीज़, मैंने जैसे कहा है, जो चीज़ आपको मिले, अमूल का चीज़ बेस्ट है। प्रोसेस्ड अमूल चीज़ हर दुकान में मिलता है, हर सिटी में मिलता है, गांव में मिलता है। मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है कि चीज़ ना मिले। तो आप जो भी चीज़ आपके यहाँ मिलता है आप उसको डालें। अच्छा, अगर आपको इसे और थोड़ा पौष्टिक बनाना है तो आप क्रीम ना डालें, मगर हल्का सा आप पनीर को भी खीस के डाल सकते हैं। अब हर एरिया आप देखिए, इसमें पूरा चीज़ भर गया है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून तक ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। ओके, फिर ये आप टेक्निक ज़रा देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये है बटर को मैंने ऐसे किया है, स्लाइस लिया है, इसको फिर से मैं काट रही हूँ और छोटे छोटे पीस सब जगह डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 या 2 टेबल स्पून जितना बटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डालने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जब ब्रेड बेक होता है, जो ब्रेड क्रम्स हमने डाले हैं चीज़ के साथ, ये अच्छी तरह से एक ब्यूटीफुल उसका गोल्डन रंग आता है, एकदम सुनहरी ब्राउन, और देखने में बहुत आकर्षक है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में भी कहा है, हम पहले खाना सूंघते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर ही हमारे पेट में जाता है। तो तब तक अगर बहुत आकर्षक है, रंगीला है, तो फिर हमें वो भोजन बहुत पसंद आएगा। तो इसी कारण से ये आप देखेंगे छोटे छोटे पीस ही डाले, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। Can you just scroll around to see everything is covered? अच्छा, तो yeah. Can we? No, you cannot use melted butter. The butter has to be like this. Melted butter won't evenly. What happens is this butter will melt when we put it in the oven. So it is kind of essential that you don't do that. Now, if you want, you could add some red chili flakes on top, or you can add some more herbs.
आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम herbs. देखिए आप जब सब्ज़ी सेलेक्ट करेंगे ये इस डिश बनाने के लिए, आप देखें थोड़ा येलो रंग का सब्ज़ी, ब्राउन वाइट सब कलर अगर आप डाल सकते हैं तो ये और भी आकर्षक रहेगा सर्व करने में, खाने में, और सबको पसंद आएगा. तो अभी इसको क्या करना है, अभी ये रेडी हो गया है, इसको ओवन में डालना है. नाउ अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप प्रेशर कुकर में एक रॉक सॉल्ट डाल के या तो मिट्टी डाल के उसमें बेक कर सकते हैं. अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप ये जो ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स और चीज़ डाला है इसको ऐसे ही डाल के माइक्रोवेव में डालें. ये फिर भी मेल्ट होगा, क्रिस्प होगा, मगर कलर शायद नहीं आएगा क्योंकि माइक्रोवेव में ऊपर का एलिमेंट नहीं है जो गर्म करता है. तो इसको अभी आप अभी मैंने पहले ही ओवन में एक बना के रखा है. जस्ट अ सेकंड, होल्ड दैट व्हाइल आई गेट द करुण, आई कांट मूव यू, द माइक इज ऑन. ये मैंने ऑलरेडी बेक करके रखा है पहले से ही क्योंकि ये 15 मिनट. अच्छा जो ओवन में हम डालेंगे, मैं आपको दिखाऊं. आप ये मोड सेलेक्ट कीजिए. ये 180 है, आप 180 में कर सकते हैं या तो 200 ओवन में कर सकते हैं. आप यू कैन चूज ईदर वन ऑफ दीज टू टेम्परेचर्स एंड बेक इट फॉर 10 to 15 मिनट्स. ठीक है. And here it is done, and let me just show you what. Karun, can you give me that plate? So you bake it for about 10 to 18 minutes. जब आप देखते हैं जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप ये रेडी हो गया है. You come around this side. You should always be on my right because I'm left-handed, right? Then my left covers. तो Karun, come close in on that. तो ये है देखिए कितना सुंदर लगता है. और अगर आप ये साइड डिश के साथ ये रखें, ये है गार्लिक ब्रेड. आज हमारा यही होगा डिनर. और इसमें आप थोड़ा डेकोरेशन कर सकते हैं. इसको सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं. आप को पसंद है तो जो भी आपके घर में आपको सूप पसंद है, जैसे कि मैं यूजुअली टमाटर सूप सर्व करती हूँ या तो एक सैलेड बनाती हूँ, और हम गार्लिक ब्रेड ऑलवेज खाते हैं. तो आप ये डिश एग्जैक्टली डाइट फ्रेंडली नहीं है मगर आप बना सकते हैं. ये कभी कभार खा सकते हैं, माने महीने में एक बार जब आपको अगर कुछ खाना है स्पेशल तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं. और अगर आप इसको डाइट वर्जन करना चाहते हैं तो आप टोन मिल्क इस्तेमाल कीजिए. चीज़ ना डालें या तो कम चीज़ डालें और उसका फ्लेवर जस्ट इज़ गुड रहेगा. तो आप एंजॉय कीजिए. ये बॉन एपेटीट बोलते हैं. और मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो. अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए. और आपके कमेंट्स इतने आ रहे हैं और इतने बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच. हाँ महक, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन वंस अगेन. यू वांटेड टू यूज़ अ माइक्रोवेव. इफ़ यू यूज़ द माइक्रोवेव, just use the microwave at you use it at 1200 or whatever the highest power you have, and cook it for about 3 to 4 minutes, just until the top is crisp, like you saw this. If you have an OTG, you could use an OTG also. You could also use a
pressure cooker may you put sand or you put salt, and then you bake it for about 15-20 minutes, just until it gets crisp. So let me scroll through and see if there are any questions that I have not answered. Thank you everybody who has watched today. It has been such a pleasure using Amul products, which is what our Prime Minister also suggests, that be local, be vocal for local. So I hope you all will enjoy using a lot of these Amul products. We have some of the best cheeses. Amul has really improved tremendously, and I cannot tell you how delicious this Huda cheese, which is amazing. I love the flavors. So you please try using this. Make this dish as well. If you have any more questions, I think I have answered pretty much all. I'm scrolling through. Just let me thank everybody again. Once again, thank you so much for watching. Thank you for your patience. I really appreciate you. If you want to see any other special dishes using Amul products, please go ahead and write your comments in, and I will be more than happy to share with you how to make any of those. If you would like to follow me, I am on Instagram. Please look for Rupa Balachandran. I'm also there on Facebook. You can find me on Facebook. And I host a cooking show for EWTV. You can watch it not only on TV, but you can also watch it on YouTube. Please do a Google search or search for Inadu Food, and you will be able to see a lot of those videos. Please do visit my Facebook page as well. I would love to hear from you, your comments. If there's anything special that you want to see again on Amul Live, or if you would like to see, I also do host Facebook Lives on my page every once in a while, showing different dishes that my friends and fans request. So thank you so much